سورہ بقرہ آیات نمبر 21 پہلا پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے بیشتر تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایو اے ہناسو لوگو اعبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ صحیح بخاری کی روشنی میں عبادت کا اصل مطلب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 73-72 میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ الحمد شریف میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو، اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ مجھ سے مانگو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی واضح کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ میری عبادت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں پیدا کیا، لمبی چوڑی بات نہیں کرتی، ہر کسی کو پتہ اللہ نے کیا نہیں دیا، تو کیا اللہ کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ کیونکہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں بنایا، اس کے بدلے اللہ کو نہ تو کھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھوکا ہے تو ہم اس کو کھانا دیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کوئی رشتہ دار ہے کسی کا چلیں اس کا وہ رشتے کے حق سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا حق ہے، ایک اس نے حکم دیا اس کی ہم عبادت کریں بس۔ نہ اللہ نے کہا آپ مجھے کھانا بھیجو، پانی بھیجو، فلاں بھیجو، فلاں بھیجو، فلاں بھیجو، کچھ بھی نہیں مانگتا۔ ہر جگہ اللہ نے کہا صرف میری عبادت کرو، اور اللہ نے یہ بھی صاف کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت اللہ کی کرو اور کہو ہم نے فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، اب مانگو دوسروں سے۔ اللہ صاف کرے کہ عبادت بھی میری کرو، میرا حق ہے میرے بندوں پہ کو وہ میری عبادت کریں، اور وہ مدد بھی مجھ سے مانگیں، کسی اور کو بھی میرا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، خانقاہوں پہ جاتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جو ہے وسیلے کے بغیر نہیں سنتا، تو ان کو یہ آیتیں کیوں نہیں نظر آتی؟ وہ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ادھر اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو، اور میں اللہ ہوں، میرا پیغمبر آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور اس سے جو پہلے نبی ہے جو کچھ ہے اس پہ بھی ایمان رکھو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی آیات میں عبدو کا حکم اس خالص توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے، بلاتا ہے توحید کی طرف۔ عبدو عبادت میری کرو، یہی اگر ہم سارے بندے لگ جائیں اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلانے لگ جائیں خالص توحید کی طرف، پھر اگر یہ بات کریں تو کہتے ہیں یہ فلاں فرقے سے ہیں، فلاں سے ہیں، فلاں سے ہیں۔ خود کیوں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میرا حق ہے میرے بندوں پہ وہ میری عبادت کریں اور میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں؟ اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ان سے مانگے ان کو میرا شریک ٹھہرائیں۔ کسی نبی کا پہلے بھی آئے ہیں، اللہ نے یہ کہا اس پہ ایمان رکھو، ان کے نقش قدم پہ چلو، یہ نہیں کہا کہ ان سے مانگو۔ مانگنے کا اور عبادت کا اللہ تعالیٰ نے صرف خود کو بولا ہے کہ میری عبادت کرو، میرا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبدو یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف، توحید کا اصل مقصد ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، جو غلط راستے پہ ان کو منع کرو۔ کوئی آپ کو قتل نہیں کرے گا،
अगर कोई आपको कत्ल कर भी देगा तो आप शहीद होंगे कि आप अल्लाह ताला की तौहीद को फैला रहे हैं। तो अल्लाह के दीन को जितना हो सके फैलाओ, और खुद नहीं फैला सकते, खुद दीन को नहीं जानते, तो जो दीन को फैला रहे हैं उनकी मदद करो, ताकि आपको भी सवाब मिले कि आप दीन के रास्ते में खर्च कर रहे हो। ये नहीं है कि अपनी जायदाद अल्लाह ने जो कुछ दिया है, माल दीन सब कुछ, उसको आप लोगों गलत रास्तों पे खर्च करें। उससे अच्छा है कि अगर आप खुद दीन के लिए नहीं निकल सकते, खुद कुछ नहीं जानते, तो जो दीन की तौहीद फैला रहे हैं, जो दीन को फैला रहे हैं, उनकी मदद करें ताकि दीन ज्यादा से ज्यादा फैले और आपको आखिरत तक उसका सवाब मिले। असल जिंदगी आखिरत है, ये तो चंद दिन की जिंदगी है। मरने के बाद जब हम जिंदा होंगे इंशाल्लाह, अच्छे काम इधर करेंगे तो हमें आखिरत की जिंदगी मिलेगी। तख्लीक बतौर दलील, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म देने के साथ अपनी सिफत तख्लीक का जिक्र किया है। जहां अल्लाह ताला ने ये कहा है कि सिर्फ मेरी इबादत करो, मुझसे मदद मांगो, मेरे बंदों पे हक है कि वो मेरी इबादत करें और किसी को शरीक ना ठहराएं, वहां पे तख्लीक का भी है जिक्र। बुखारी शरीफ की तालीमात के मुताबिक खालिक ही इबादत का मुस्तहिक है। खालिक कौन है? हमारा खुदा, खालिकुल आलमीन, जिसने सब कुछ पैदा किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं सिर्फ मैं ही मुस्तहिक हूँ, मेरी इबादत करो, और कोई नहीं है जिसकी इबादत करो, जिसे तुम मदद मांगो। मुसलमान का सर, एक सच्चे मुसलमान का सिर्फ अपने रब के आगे झुकता है, और वो जो अपना सर अपने रब के आगे झुकाता है तो ऐसे सोचता है कि मैंने अपना सर अपने अल्लाह के कदमों में रखा हुआ है। फिर जब वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगता है तो आप खुद सोचिए अल्लाह कैसे उसको रद्द करता है। नहीं करता अल्लाह ताला। जब किसी अल्लाह ताला के पाँव में कोई गिर के मांग रहा हो और अल्लाह को पता हो ये मेरा खालिस बंदा है, ये सिर्फ मेरी ही इबादत करता है, मेरा किसी को शरीक नहीं ठहराता, तौहीद पर अमल करता है, और दुख सुख में सिर्फ वो अपनी नमाज और रोजे और सब कुछ कायम रखता है, वो कोई बुराई पे नहीं चलता, वो कोई गलत रास्ते पे नहीं जाता, तो अल्लाह ताला फिर उसकी इबादत और उसकी दुआएं रद्द नहीं फरमाता। जब पैदा अल्लाह ने किया है तो बंदगी भी तो सिर्फ इसी की होनी चाहिए। जब हमें पैदा अल्लाह ने की है, हम फलां दर पे जाते हैं, फलां पे जाते हैं, फलां पे जाते हैं, देखा है किसी पीर ने पैदा किया हो, किसी को बनाया हो, किसी को दिया हो? जब हमें पैदा ही अल्लाह ताला ने किया है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है, हमें क्या नहीं दिया? अल्लाह ताला ने सबको दिया है, तो फिर बंदगी भी तो सिर्फ उसी की होनी चाहिए। इबादत भी तो बंदगी, इबादत सजदे सब कुछ, मददें खैरातें सब कुछ अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए ना। फिर हम क्यों अल्लाह ताला का किसी को शरीक ठहराते हैं? बनाता अल्लाह है, कहते हैं जी वो हमारा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने कब कहा है कि आप मुझे मेरे पास वसीले लेके आओ? अल्लाह ने तो हर जगह कहा है कि मुझसे मांगो, मैं शारा के करीब हूँ, और मेरी इबादत करो, मुझी से मांगो, मुझी से मांगो। अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं कहा कि आप किसी को वसीला बना के ले आओ। तो क्यों हम ऐसे करते हैं? क्यों हम अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं और आखिरत भी खराब कर रहे हैं? तो दीन को फैलाओ। एक आयत भी जानते हो तो दूसरों को बताओ जो नहीं जानते, जो जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जो लोगों के दरवाजों पे अपने माथे टेक रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, उनको बताओ कि अल्लाह कहता है सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो, पैदा मैंने किया है तो मेरी इबादत के लायक हूँ। तकवा का हसूल आयत के आखिर में लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको का जिक्र है। सही बुखारी हदीस नंबर 1903 की रोशनी में इबादत जैसे रोज़ा या नमाज का असल समरा तकवा है, यानी इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हो जाए। ये देखो, ताकि तुम बच सको, अल्लाह कुम तत्तकून, बच सको। किससे बच सको?
गुनाहों से बच सको। अल्लाह ने कहा है मेरा शरीक किसी को ना ठहराओ, शिर्क से बच सको। अल्लाह ताला ने साफ कहा है जो बंदा शिर्क करेगा उसकी तो कोई बख्शिश ही नहीं है, इसलिए कि उसको तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, वो तो सीधा जहन्नम में जाएगा। जब पैदा अल्लाह ने किया, दिया सब कुछ अल्लाह ने, हम अल्लाह को छोड़ के दूसरे दरवाजों पे जाएंगे, दूसरों को उसका शरीक ठहराएंगे, तो फिर वो कैसे हमें बख्शेगा? फिर हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें जन्नत भी दे देगा? हम काम भी अल्लाह ताला के खिलाफ कर रहे हैं, जो उन्होंने फरमाया उस पे अमल भी नहीं कर रहे, उन्होंने नबी भेजे उन पे भी नहीं अमल कर रहे, और हम कहते हैं भी हम जाएंगे भी जन्नत में। तो क्या खुद ही जन्नत आप खरीदोगे वहां जाके अल्लाह ताला से? किस तरह खरीदोगे जन्नत जब उसका कहना ही नहीं मान रहे? तो अल्लाह ताला जब कह रहे ताकि तुम तत्तकून बच सको उस जहन्नम की आग से और सीधे रास्ते पे चलो, और इबादत जैसे रोजा या नमाज का असल तकवा है, यानी इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ है। ये नहीं आप रोजे रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, नमाजें पढ़ते जाओ, हज करते जाओ, उम्रे करते जाओ, और गुनाह भी सारे करते जाओ, अल्लाह का शरीक भी ठहराते जाओ, इबादतें भी लोगों की करो, खैरातें भी लोगों के नाम की करो, को वो हमारे वसीले हैं, और मांगो भी दूसरों के आगे, और ये माथा ये पेशानी सिर्फ अल्लाह के आगे जो झुकनी चाहिए, इसको झुकाओ भी लोगों के आगे। फिर भी कहो कि नहीं जी हम तो फलां हैं, हम तो नमाजी हैं, हम तो परहेजगार हैं, हमने तो सारे रोजे, जो मेन अल्लाह ने आपको मना किया है जब आप वो कर रहे हो, तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि हम तो जाएंगे? मैं किसी फिरके में बात नहीं करना चाहती, फिर बातें याद आ जाती हैं। अहल सुन्नत वाले तो ये कहते हैं कि हम तो हैं ही बख्शे बख्शाए, क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। उन्होंने एहसान कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि ये उसकी उम्मत है। अगर उसकी उम्मत है तो फिर उस जैसे काम क्यों नहीं करते? वो तो अपने अल्लाह का, वो तो नबी थे, सारी सारी रात इबादत करते थे, कोई गलत काम नहीं करते थे। आप सिर्फ उसकी उम्मत हो के एहसान जता रहे हम उसकी उम्मत हैं, हम सीधे जन्नत में जाएंगे। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लिख के दे के गए थे कि तुमसे मेरी उम्मत हो तो सीधे डायरेक्ट जन्नत में चले जाओगे जितने भी गुनाह करोगे? अपने जमीर को देखो कि तुम क्या कर रहे हो, उनसे बात करो तो गले पड़ जाते हैं कि अल्लाह तो वसीले के बगैर नहीं पढ़ सुनता, अल्लाह तो तर्जमे की इजाजत नहीं है, खुद पढ़े कुरान पाक का तर्जमा, किसी से इजाजत लेंगे भी, जिससे तुम इजाजत लोगे क्या कुरान पाक उसी ने बनाई है? कुरान पाक अल्लाह ने बनाया, इजाजत तो वो देने वाला है, ये कौन होते हैं किसी को इजाजत देने वाले? या देखो ये अहल सुन्नत देवबंद चले जाते हैं, हम फतवा लेंगे, फतवा के बगैर तो कोई काम ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? फतवा जिससे लोगे क्या उसने खुद दीन बनाया हुआ है? जब कुरान पाक अल्लाह ताला ने भेजा है तो आप कुरान पाक को पढ़ो, इसमें जो लिखा हुआ है इस पे अमल करो। क्यों जाके दूसरों से पूछते हो? काम तुम ये करते हो, कहते तो हाँ हैं हम मुसलमान हैं, हम दीन वाले हैं, हम नमाजी हैं, हम परहेजगार हैं फला, ठीक है अच्छे काम करते हो, पर ये तो नहीं है कि काम सारे अल्लाह के खिलाफ करो और यो भी कहो कि हम तो हैं ही बख्शे बख्शे। तो इसीलिए वो सच्चा मुसलमान होता है जो नमाज रोजा सब कुछ करता है और उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। वो दिन को, ये नहीं है लोगों को दिखाने के लिए इबादत करे और रात को गुनाह करे, वो रात दिन सिर्फ अल्लाह का खौफ रखता है और गुनाहों से बचने का उसमें जज्बा होता है। ये नहीं सोचता कि मैं गुनाह कर लूं, तो बस तक फिर छोटी सी कोई गलती भी उससे हो जाए तो उसका दिल उसे मलामत करता रहता है और वो खुद को गुनाहगार साबित और सोचता रहता है कि मुझसे क्या गुनाह हो गया। तो ये होता है अल्लाह का खौफ, ऐसा नहीं है अब सब कुछ गलत किए जाओ, अल्लाह का खौफ भी ना हो आपके दिल में और आप कहो कि हम हैं ही बख्शे बख्शाए, हम तो फलां की उम्मत है, फलां है फलां है फलां है। जो कुछ हो, जब उन जैसा काम नहीं किया तो ये कौन सा एहसान जिता रहे हो कि हम तो ये करेंगे, हम तो बख्शे जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे वो हमें बख्शवा देंगे। उन्होंने अपनी औलाद तक शहीद करवा दी, नवासे शहीद हो गए, तो वो उनको ना कहते कि आप शहीद ना हो, मैं आपको बख्शवा लूंगा, इतनी सारी उन पे मुश्किलात आई, वो उनकी ना आसान कर देते। आप सिर्फ उसकी उम्मत हो गए, काम एक उन जैसा नहीं किया और उम्मीदें ये रखते हो कि वो हमें आके
बख्शवा देंगे, क्या वो अल्लाह के खिलाफ फैसला करवा देंगे? अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, अपने नबी को जमीन पे भेजा कि ऐसे ऐसे करवाओ, आप लोगों ने वैसा नहीं किया, तो फिर भी वो अल्लाह के जाके खिलाफ हो जाएंगे कि ये जो मेरी उम्मत थी इन्होंने सारे काम आपके खिलाफ किए हैं, फिर भी आप इनको बख्श दें। तो आप ऐसे किसी सिंपल इंसान के पास चले जाओ, वो सारी गलतियां कर चुका हो, सारे उसके खिलाफ कर चुका हो, उसको कहो कि बख्श दे। कोई उसका दोस्त, कोई साथ चला जाए, वो उसे बख्श, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने जो रास्ते बताए, जब हम उन पे चलेंगे, उसी की इबादत करेंगे, मदद सिर्फ उसी से मांगेंगे, उसका शरीक नहीं ठहराएंगे, और दिल में खौफ रखेंगे, एक जज्बा रखेंगे कि हमसे गुनाह ना हो, और अच्छाई का जज्बा रखेंगे, अच्छाई करते रहेंगे, भले आपके पास जायदाद नहीं, कोई चीजें नहीं, कोई वसाइल नहीं, लेकिन अल्लाह ने जुबान दी है, जहां तक हो सकता है आप दीन को फैलाओ, दीन की तबलीग करो, सीधे रास्ते पे तौहीद पे लोगों को बुलाओ, अल्लाह की रजा के लिए बुलाओ, हर किसी को डराओ कि गुनाह है, गुनाह से खौफ खाएं, डरें। तो अल्लाह ताला आपके लिए, एक बंदा आपकी वजह से नेकी की तरफ चला जाता है, या एक रुपया आपका हलाल का जो अल्लाह की राह में आप खर्च करते हैं वो कबूल हो जाता है, उस एक रुपए की वजह से कोई किसी तक ये पैगाम पहुंच जाता है कि वो नेकी कर सके, तो उसका आपको क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। और अगर आप वही पैसे गुनाह में लगा जाते हैं, जो अल्लाह ने काम मना किया है कि मेरा शरीक ना ठहराओ, किसी और से ना मांगो, किसी और की देगे ना चढ़ो, जब आप वो पैसे वही अल्लाह के खिलाफ लगा के जाते हो, तो फिर कैसे सोच सकते हो कि आप बख्शे जाओगे? फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमने तो इसलिए खैरात की, इसलिए कि फलां का ये किया, फलां का चालीसवां किया, फलां का दरबार पे जाके ये किया, वो किया, 11वीं बनाई, फलां फलां फलां, जितनी बला 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 आपने की। तो अल्लाह ताला ने जब नहीं कहा आप ये काम करोगे, अल्लाह के खिलाफ करोगे, तो क्या अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा आपकी चीजें? जब शैतान अल्लाह ताला से वादा करके आया कि मैं आपकी उम्मत का एक हिस्सा मुकर्रर कर लूंगा जो गलत रास्ते पे लगेगा, अल्लाह के खिलाफ लगेगा, तो यही चीजें थी कि जो कहेंगे हम कर तो खैराते रहे, देख रहे हैं, लेकिन वो बनाएंगे अल्लाह के खिलाफ। अब है उर्दू में तफसीर, इंग्लिश में, सॉरी।